ایجوکیشن جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس طرح کے ایک نظام کو جو بہار میں 2008 میں ایک کانسیپٹ، ایک آئیڈیا جو مولانا ولی رحمانی صاحب مرحوم ان کی کوششوں سے الحمدللہ اس کی تشکیل ہوئی تھی، اور اس کے ذریعے سے کوشش یہ ہوگی کہ امت اور ملت میں جو بچے ٹیلنٹڈ ہیں، کافی میریٹوریس ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایکسپوز ہونے کا یا ان کو پریزنٹ کرنے کا ان کو کوئی اس کی رہبری نہیں ہو پاتی، کیونکہ ایسے پلیٹ فارمز ملت کے نہیں ہیں، اور جو انسٹیٹیوشنز ملت کے اسٹیبلشڈ ہیں، ویری انفارچونیٹ ٹو سے کہ وہ انسٹیٹیوشنز میں اس طرح کی نہ سوچ ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی انفراسٹرکچر سپورٹ ہے اور نہ اس طرح کوئی ہیومن ریسورس ارینجمنٹ ہے جس میں بچوں کو وہ لافٹی پیڈسٹلز تک سوسائٹی کے پہنچا سکیں۔ Which was a very good idea conceived by مولانا ولی رحمانی صاحب مرحوم، جو تقریباً 12 سال 2008 میں اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے، اور اس کے ڈیٹیلز آپ کو سامنے آئیں گے۔ لیکن یہ انسٹیٹیوشن سے فائدہ یہ ہے کہ جو لافٹی پیڈسٹلز ہیں ایجوکیشن کے اور سوسائٹی کے، وہاں تک ہمارے عام بچوں کی رسائی ہونے کا ایک مادھیم ہے، وہ میڈیا ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے وہ پار ایکسلنس ود دی ادر یونیورسٹیز کے ساتھ جو کریکولم ہے اس کا پار ایکسلنس ہے، وہ انڈیا کا ٹاپ موسٹ انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ، اور وہاں سیٹ مل جانا نتھنگ بٹ اسٹوڈنٹس کو وہاں سیٹ مل گئی تو وہ 1 کروڑ 2 کروڑ روپے کو ہیز بن، جیسا کہ کروڑ پتی پروگرام میں 15 سوال 13 سوال کے جواب دے کر آدمی 1 کروڑ روپے لے لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ آبجیکٹو پروگرام جو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، اگر اس کو سالو کر لیا تو ہی going to win a seat of 1 crore or 2 crores or more than that۔ ان انسٹیٹیوشنز میں بہتر آپ لوگ کریں گے خدمت ملک کی اس طرح سے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ ایک خدمت اور جو آپ کریں گے، ISM دھنباد اور IIT دہلی میں میرے بچوں نے مسلح کا انتظام کر لیا، وہاں کے ادارے نے ان کو دیا کہ یہ بچے بہت شریف ہیں اور نیک ہیں، ان کو نماز کی جگہ دی جائے۔ تو آپ بھی وہ کریں گے انشاءاللہ جہاں بھی جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے کہ جس کا وزن محسوس ہو، جس کو کہتے ہیں کریٹیکل ماس، اور ایسا کام کریں گے کہ آپ سے خوش ہو کے لوگ آپ کی بات کو مانیں، جھگڑا لڑائی کیے بغیر۔ ٹھیک ہے نا؟ مجھے جو اپنی بات کرنی تھی بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے، میں نے آپ لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے کچھ سوال کر لیں، کیونکہ سوال آپ کی شناخت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جواب آپ کی شناخت نہیں ہوتی، وہ پاس میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کیجیے تاکہ میں بتا سکوں۔ ایک سوال آپ کی طرف سے میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، پیسہ کتنا لیجیے گا پڑھانے کا؟ ہے نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور 30 بچے میں ہم کیسے آئیں گے؟ رحمانی چھٹی میں کتنے بچے ہیں؟ 30۔ تو 30 بچے میں ہم آئیں گے کیسے؟ الحمدللہ۔ یہ دونوں سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ نمبر 1، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ لیڈرشپ، آلو اور پیاز خریدنے جائیں گے تو ہم پیسہ جیب میں لے کے جاتے ہیں، لیکن تقویٰ آتا ہے ہمارا کہاں؟ لیڈرشپ۔ وہاں سب اللہ دے کر، بقیہ کپڑا خریدنے میں، گاڑی خریدنے میں پورا دماغ چلتا ہے ہمارا۔ تقویٰ کہاں آتا ہے؟ لیڈرشپ۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ کمیونٹی کو لیڈرشپ میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ پروگرام مسکین کا نہیں ہے، بیسٹ آف دا برینز کا ہے، جس کو کہ کمیونٹی کو پڑھانا ہے۔ تو آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی چارج پڑھنے کا نہیں، یعنی کہ ابھی رحمانی چھٹی 30 نہیں ہے بیٹا، 1006 اسٹوڈنٹس، اور ان 1006 بچوں سے ایک بھی پیسہ ہم پڑھانے کا نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، جب تک والد صاحب نے اپنے پروجیکٹ اپنے پیسے سے جیب سے یا ہمارے اپنی پراپرٹی سے لگایا تھا، تب ہم کھانے کا بھی نہیں لیتے تھے۔ لیکن جب بچے 1006 ہو گئے تو ایک نیا قانون ہم لوگوں نے طے کیا کہ جو بچے دینا چاہیں یا دے سکتے ہیں ان سے ایجوکیشن کے علاوہ پیسے لیے جائیں۔ آپ لوگ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس میں بھی کئی سینٹرز ایسے ہیں ہمارے کہ الحمدللہ بہت سے صاحب خیر لوگ نے کہا کہ نہیں یہاں کا کھانے کا انتظام ہم کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو الحمدللہ پڑھنے کا کچھ آفیسر نہیں ہے،
रहने और खाने और उसके अलावा के जो खर्च है वो जो दे सकता है उससे लेते हैं, जो नहीं दे सकता है उससे नहीं लेते हैं। बात समझ में आई? तो ये है फाइनेंस। 30 सीट नहीं है, 1006 है। हम लिमिट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से लिमिटेड नहीं है मैडम। अभी तक हम लिमिटेड थे क्योंकि हमें बच्चे नहीं मिल रहे थे। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? जब पहली मर्तबा हमारी खेती का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो टोटल 10 बच्चे हमें मिले 30 के इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले साल एक नया रिसर्च हमने किया और ये पाया कि अगर हम 2 महीने पढ़ाते हैं तो जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें 50% को हम पिक कर सकते हैं। ये हमने बिहार में और महाराष्ट्र में किया और इस साल आप यहाँ उसको अप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। हर इंसान में अल्लाह ताला खुदादा सलाहियत देता है और इन खुदादा सलाहियत को पहचान कर आगे बढ़ाने के लिए रहमानी 30 आप मैसूर में पहुंच चुका है। ये वो शोबा है जो तालीम में अहलियत रखने वाले बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करने वाला है जो अब तक के ख्वाब था। रहमानी 30 का यह मानना है कि जो बच्चा ख्वाब देख सकता है, जिसको नींद नहीं आती, ऐसे बच्चों को हम चुनिंदा बच्चों को जिस तरह से उसकी सलाहियत है उसको आगे ले जाने के लिए कमर बस्ता हैं। रहमानी 30 के जो ज़िम्मेदार है फ़ाहिद रहमानी साहब आए हुए हैं और तनवीर साहब भी मौजूद हैं। तनवीर सेठ साहब और यहाँ जो भी तासरात आपको दिखाए गए थे, इसके आगे जो भी तफसीलात हैं आपको खुसूसी तौर पर मालूम कराऊंगा ताकि आप वालिदैन इस अहम प्रोग्राम को अहमियत को जानने की कोशिश करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीपू सुल्तान में आपका इस्तकबाल है। मेरे लिए तो शहर मैसूर एक तालीमी गहवारा माना जाता है। सर, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, बताइए सर। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर तमीम भाई और तनवीर भाई का कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ के खिदमत करने का। कोशिश और काविश यही है कि बच्चों को लेके हम अपने से बेहतर इंसान बनाएं। मुल्क और कौम की खिदमत करना, इंसानियत खिदमत करना बच्चों को सिखाया जाए। उसमें हमारा टारगेट ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एक पार्लियामेंट का एक्ट है जिसके तहत ये पाया गया है कि एक बड़ी तादाद में लीडरशिप डेवलप हो सकती है और हम ये समझते हैं कि मुल्क की खिदमत करने की उससे बेहतर कोई दूसरी राह नहीं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ से बच्चों को ले करके और उनकी ट्रेनिंग दी जाए। आपको सुन के खुशी होगी कि बेंगलोर का जो सेंटर हमारा पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा है, 3 साल से, उसमें पिछले साल इतने जो रिज़ल्ट आया है वो अकेले अगर सिर्फ उस रिज़ल्ट को देखा जाए तो हिंदुस्तान में नंबर 1, जबकि कोविड के दौरान का। तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ से मैसूर से ज़्यादा बच्चे जाएं और उसका तरीक़ा ये होगा कि जो बच्चे स्टैंडर्ड 11th में हैं, हम तनवीर साहब की इजाज़त लेकर के और जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, हम बच्चों को टेस्ट करेंगे और जिन भी बच्चों में वो तवानाई महसूस होगी इंशाअल्लाह उनके 2 साल का एहतिकाफ़ शुरू कराएंगे। और जो बच्चे 10वीं जमात में हैं उनको यहीं पर रख करके अलग अलग ग्रुप्स में स्कूल्स को इंगेज करके हम उनको तैयार कराएंगे कि अगले साल एक बड़ी तादाद बच्चों की हम तैयार कर सकें। ऐसे हमारी कोशिश होगी और काविश होगी इंशाअल्लाह ताला। जो आपने इंटरेक्शन किया उसमें एक चीज़ मैंने गौर की, आपने हल्फनामे के बताया। हल्फनामा क्या है, थोड़ा बताइए सर। हल्फनामा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस डिफ़ाइन करना है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो हम लिख दें और जो वो कर सकते हैं वो लिख दें, जो वो करेंगे वो लिख दें। जैसे कि हम बच्चों से हल्फनामा लेते हैं कि जब वो ताकतवर इंसान हो जाएंगे, साहिब हैसियत होंगे, तो कम से कम 2 बच्चों को स्पॉन्सर करें। जैसे हम उनके पेरेंट्स ये हल्फनामा लेते हैं कि कम से कम 5 दिन साल का वो खिदमत करें, चाहे और जो हम कहें एज़ अमीर वो उसकी अताअत करें। यानी कि हम कहें मस्जिद जाके धो, जैसे माशाल्लाह अच्छी चीज़ें हैं, दूसरी कौमों से भी सीखने का है। सिखों के यहाँ जूता सेट करने का मामला होता है, नहीं सफाई सुथराई, और उसके अलावा सोशल वर्क तो वो करवाएं हम। और बच्चे हमारे साथ छोड़ के न जाएं। यानी हमें अपने ऊपर इतना हौसला और हिम्मत है हमारी कि हम ये समझते हैं कि एक मरतबा जो बच्चा आ गया इंशाअल्लाह उसको उस पार हम उतार पाएंगे, उसके गोल को पूरा कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एफिडेविट लेते हैं उनसे कि वो न हमें छोड़ें न हम उनको छोड़ें, दोनों एक दूसरे को न छोड़ें। तो इस तरह के एफिडेविट तैयार करते हैं ताकि जो सुन्नत है वो पूरी हो सके और हक़ अदा हो सके कि जो बात तय पाई है हम दोनों के बीच में वो लिख दिया गया उसमें। सर, आपके वालिद मरहूम वली रहमान रहमतुल्लाह अलैह की जो सोच थी, क्या वो सोच शर्म हो रही है? कोशिश तो कर रहा हूँ। 10 बच्चों से आज 1006 बच्चे हो गए। अब अगर आप यहाँ मैसूर के जैसे लोग और बेंगलोर में जिस तरह से जगह तमीम साहब ने और लोगों ने और अमीन वगैरह ने मिल के इंतज़ाम किया है तो यकीनन क्यों नहीं हो। इतने लोग नेक ख्वाहिशात के साथ बग़ैर छपने और छपाने की कोशिश के बावजूद अगर लगे हैं
तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा करेगा इंशाअल्लाह। जज़ाक। रामानी 30 के कॉन्सेप्ट से आप मैसूर के बच्चों को क्या मैसेज देंगे सर? ये सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। साल 2017-18 में जब मैं वज़ीर तालीम रहा, जब भी मेरी ये कोशिश थी कि रहमानिया 30 को रियासती वक्फ बोर्ड के साथ जोड़कर पूरे रियासत भर में एक काम करें। डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ से IAS KAS का कोचिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ जो मैनेजमेंट है, नेशनल इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम होना है। ये मेरी खुशनसीबी है और शहर मैसूर के लिए एक खिदमत करने का मौका है कि फ़हद रामानी साहब से मेरी मुलाकात तमीम साहब के घर में मिली। तो मैसूर का जिक्र आया तो मैंने कहा कि हमारी क्या कोशिश है, क्योंकि सबसे पहले 10वीं जमात और 12वीं जमात में जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस है, ये एग्ज़ामिनेशंस को लेकर हमारी एक फ़िक्र थी। और अक्सर ये देखा गया कि है ना हमारे मजलिस रिफ़ाल मुस्लिमीन यतीम खाना निस्वा और अपना घर में हमारे लड़कों के यतीम खाने में SLC का जो रिज़ल्ट था 20-22% से ज़्यादा नहीं था। आज एक लगातार कोशिश और हमारी एक कोशिश हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और है ना हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको रखकर कोशिश करने के बाद आज अपने घर में हमारा 100% रिज़ल्ट है SLC का। तो इसको देखने के बाद अगर किसी के ऊपर मेहनत करें तो नाकामयाब नहीं, हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है जी, इसके तहत IIM IIT JEE जो भी है, हमारे कौम के जितनी हमारी तादाद होनी चाहिए, अगर 15% हमारी आबादी है और अगर हम 15% के हमारे सीट्स को हम हासिल करना है तो हमारे पास उतने बच्चे भी होना चाहिए। आज लगभग 2.6% तक हमारा है ना दाखिला है। तो वो फ़िक्र आज वली रहमानी साहब के बाद फ़हद रहमानी ये जो कोशिश चल रही, हमारी ये अदना सी कोशिश है कि शहर मैसूर और अतराफ़ के ज़िले के जहाँ कहीं भी हमारे बच्चे हैं, इस साल क्योंकि दाखिला हर जगह हो गया है, उनको क्रैश कोर्स देंगे। अगले साल के लिए हमारे बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में है ना SLC के बच्चों को बनाकर आइंदा उनको है ना उनके मुस्तकबिल के लिए क्या करना है वो काम भी शुरू होगा। इसके साथ साथ हमारी ये बात हुई है कि 8वीं जमात, 9वीं जमात, 10वीं जमात, 11वीं और 12वीं 8 to 12 ऐसे बच्चों को है ना ऑन रेगुलर फीचर में है ना उनको है ना कोचिंग क्लासेस और ट्यूशन्स देकर इन बच्चों को है ना निशानदगी कर ऐसे बच्चों को है ना IIM IIT की तरफ है ना जो नेशनल इम्पोर्टेंस कोर्सेस है उसके तरफ ले जाना है। इंशाल्लाह ये साल क्रैश कोर्सेस से हमारा ये फ़हद रहमानी का कोर्स शुरू होगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस साल के आखिरी में ही हम ये चाहते हैं कि ना इसके लिए एक बाकायदा एक सही इंतज़ाम हो। तो ऐसा नहीं है कि कौम में आज तालीमी बेदारगी इस कदर बढ़ चुकी है कि हमें आगे का सोच रहे हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि जहां हम आगे की रोशनी भी देख रहे हैं, जो बच्चे आज स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं या दूसरे हैं, उनके लिए भी स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए बच्चों को आगे लाने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए ये काम भी लगातार चल रहा है। तो इस वजह से इल्म हासिल करने और हमारे से बेहतर लोगों को बनाने जो कोशिश और जो सफ़र आज शुरू हुआ है, इंशाल्लाह दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ करें कि है ना ये सफ़र तादेर तक चले और इससे है ना मिल्लत का है ना फ़ायदा हो और मिल्लत के वो अहबाब जिनको वो मुकाम मिले वो फिर से मिल्लत के जानिब देखने की वो सलाहियत अल्लाह उन बच्चों में पैदा करे। ये कहते हुए मैं शुक्रिया। से आज का प्रोग्राम जो है वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस की तरफ जो है फोकस करना चाह रहे थे. इट वाज अ कर्टन रेजर हियर. सिंस फहाद रहमानी इज़ इन्वॉल्व विथ दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, हमें जो है इस पे फोकस करके जो है मैसूर को जो है अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में. As far as, for example, if we take about competitive examination, we only think about medical. IIT JEE is there, but still they don't focus. But here, our prime aim to focus on JEE examinations. And then once if he prepares for JEE, it's automatically he is preparing for NEET. So that is how we want to focus. So it is of the order of JEE, NEET and CET. Once if he enters into a competitive level, automatically a student can excel and his intelligentsia will grow. And this is how we want to motivate the child in this fashion. So in that way, we want to make a educational hub in Apna Ghar, and we want to see that under the guidance of Mr. Tanvir Seth, we want to grow, and his experience we want to exploit to the highest level. Since he happens to be the minister and he has brought in a lot of innovative changes when he was a minister, this type of changes we want to see. Our community should also opt for this type of changes, and we want to grow in that direction. So that is our intention. And in that direction, we have first initiated KINT Academy. KINT Academy is a part of Taj Charitable Trust. KINT stands for Kids in Need of Tuitions. There is nothing called as any name is not associated. Kids in Need of Tuitions, if you elaborate this observation. So we are training SLC people. And in that way, we want to take a step ahead by giving NEET coaching in our campus here. In that campus, we want to bring in the experts from Mysore. Experts in different fields, whether it is physics, chemistry, mathematics, biology. We want to hire them, not a courtesy call, but we want to hire them by paying them whatever they charge for it. And we want to bring a qualitative change. Quantitative change is slowly growing because the result has already touched 80%. But we want to bring a qualitative change. For this qualitative change, there should be a qualitative learning. Now, qualitative learning can be achieved by qualitative teachers. So, Majestic, we have picked up Majestic as one of the center to start with. Now we want to begin even in Apna Ghar, and we want to establish about 5 centers in different corners. If these institutions will come forward, like MESCO is there, which is still a virgin area where we can exploit. There are about 4 to 5 institutions are there. MESCO is there, GEM is there, and then other institutions are also there. We can bring in about 100 students. We will utilize their teaching faculty also who are good in the subject, and we want to take up whoever comes forward, and we will pay for it. It's not a free service or a cordial service. It is, we are going to pay. We are going to honor their commitment in the form of their honorarium. Since most of the teachers who are working in this vicinity are unaided institutions, we want to bring in, and we want to see that these teachers also should be guided in a proper way by creating orientation programs. So we require their help. If they come forward, we can, every long journey begins with a single step. We want to begin, this can be called as a single step, and we want to grow. प्रोग्राम हुआ है उन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस बात को समझने की ज़रूरत है. मौका अल्लाह ताला ने दिया है, पास अल्लाह ने जो इस्तात दी है, और उन बच्चों की जो अपने पास खुदादा सलाहियत हैं, उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा सामने आकर इस्तेमाल करने की सख्त ज़रूरत है. इस न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अस्सलाम वालेकुम. हर वर्ष की दवा इल्म है. IIT IIM इट इज अ ड्रीम. एक बच्चा भी IIT IIM में जाने के काबिल का बन गया तो पूरे मिल्लत को एक फख्र के साथ सर उठाकर जाम करने का एक मौका भी मिलेगा. आज जमा हुए हैं, हमारे जहनों को खोलने के लिए सामने आगे हमारे सामने रोशनी है. उस रोशनी के मिल जाने हमारे बच्चों को ले जाने के लिए आज का एक प्रोग्राम है. ये शुरुआत है. अगर हमारी कोशिश सही रही तो हज़रत मुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन पर हम इस काम को इस कदर करेंगे कि हमें खुद उस पर नाज होगा कि हमारे बच्चे जो ख्वाब आज तक हमने नहीं देखा था उस ख्वाब की ताबीर कर सकते हैं. मौका आया है.
इस मौके का किस तरीके से फायदा उठाएंगे कि हमारे बच्चों में है। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, अगर ख्वाब देखा करें तो उसकी ताबीर करने के लिए मेहनत भी करना जरूरी है। वो मेहनत करने के लिए आपको है ना सही गाइडेंस देने के लिए रहमानी तभी और फाज रहमानी साहब अपने आप को वक्फ करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जुड़कर जो इदारे काम कर रहे हैं, अब जैसे मैंने कहा कि एक छोटी सी कमेटी बनाकर सिर्फ शहर के एतबार से ना देखें और पैसा मर्तबा इन चीजों को दूर रखकर जो बच्चा जहन पढ़ने की तरफ है और वो कोशिश कर सकता है, चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, ऐसे 100 बच्चों को तैयार करें। उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो कोशिश हम शुरू करेंगे।